Dhananjay sir, this is Sunil Sharma, President of MPA. Welcomes you on behalf of our members. और बहुत बहुत शुक्रिया सर ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए. Thank And you. Atul bhai, if Atul bhai is there, I'll just call Atul bhai also. या अतुल भाई को बुलाइए जरा. मिस्टर अतुल जोशी प्लीज. ट्रस्टी. धनंजय भाई नमस्कार. किरण नमस्कार नमस्कार. मे बी सर इधर गए हैं. जरा सा आप जीतू भाई आप जरा प्लीज इंट्रोड्यूस कर लीजिए सर. ओके, थैंक यू. Good afternoon, everybody. I thank you, our trustee, Mr. Jitubhai Merchant, for giving a brief about Mumbai Photographer Association. As well as I also thankful to our loving president, Mr. Sunil Sharma ji, and all other dignitaries of MPA and बाकायदा हमारे खास लाइफ मेंबर. आज आपके समक्ष ये हमारा 46वां माने 46 वेबिनार सीरीज का सेशन शुरू होने हो जा रहा है. एंड फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट टुडे इट विल बी एन एक्साइटिंग सेशन कमिंग अप विथ अवर today's mentor, well-known personality from our photographic fraternity, none other than Mr. Dhananjay More. Basically, Mr. Dhananjay More is a Maharashtrian personality, and instead of staying in Mumbai, he preferred to stay in Baroda, a well-known city of Gujarat. Today, he is going to teach us on various lighting concept for studio, pre-wedding, which includes outdoor as well as indoor, and product photography. What kind of lights he is using and how to use it, he will explain also. Before he start, I would like to give you an introduction very properly for him. Mr. Dhananjay More is a professional photographer specializing in people, product, interior, and architectural photography. He has also conducted more than 200 workshops across the India as well as abroad for most known companies like Canon, Kodak, Konica, and Enilton, etc. Even also more than that. Mr. More is also an author of several articles as well as some books on photography, which includes Canon Handbook of Digital Photography and Wedding and Portraiture Photography Photographers Handbook in both the language, that is English as well as in Hindi. He studied at JJ Institute of Applied in from Mumbai in 1986-87. He has worked with many advertising agencies in Mumbai. Mute na. Mute. Please. He has worked with many advertising agencies in Mumbai, and his clients are really very prestigious clients, which includes HSBC, Pedar Tiles, Britannia, Unilever Limited, and many more. He has also worked as full-time professor of photography till 2017, and currently he is a mentor at pixelvillage.com for Godox and Samyang products. So we are very happy to present to you Mr. Dhananjay More, who is going to have a very good session with us and which is going to be quite successful
to all of us. Please concentrate on his speech. And I request everyone to put off your video as well as audio also simultaneously, and please do not disturb when he is giving a lecture. The question answer session will be held definitely. At that time, you can have your queries and solve the problem. So now I over this mic to Mr. Dhananjay More with a big applaud. Just put your hands together and give a warm welcome to Mr. Dhananjay More. Mic is yours, sir. Thank you, Jitendra bhai. Yeah. Thank you MPA for inviting me. मैं तो हिंदी में बोलने वाला हूं ताकि सबको समझ में आए. आज का जो विषय है जो मैंने चूज किया हुआ है वो है लाइटिंग के बारे में. ये जो वर्कशॉप है ये अब तक जो आपने वर्कशॉप्स देखे हैं उससे काफी अलग होगा, क्योंकि मैं इधर मेरा काम दिखाने के लिए नहीं आया हूं. मुझे सबकी फोटोग्राफी इंप्रूव करवानी है, तो मेरा मिशन जरा अलग है. तो मैं आपको जो आपके पास साधन है, जो आपके पास इक्विपमेंट है, उसमें आप फोटोग्राफी कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं और वो बताने वाला हूं कि कैसे क्या क्या कर सकते हो. तो मैं बेसिकली बीच में 2 बार आपको क्वेश्चन आंसर. एक मिनट सर जी, 1 मिनट, 1 मिनट. आई रिक्वेस्ट होस्ट टू पुट ऑफ एवरीबॉडीज ऑडियो प्लीज. म्यूट कर दीजिए, सबका ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज. और सभी मेंबर को रिक्वेस्ट करता हूं मेहरबानी करके ऑडियो ऑन नहीं करें, अनम्यूट मत करना प्लीज. आपका सबका बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है प्लीज. थैंक यू वेरी मच. कैरी ऑन सर. मैं बीच में आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन दूंगा जिसमें आप अनम्यूट करके आप मुझे सवाल पूछते जा सकते हो. तो इसलिए अभी बीच में इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है. तो चलिए हम चालू करते हैं. मैं प्रेजेंटेशन से चालू करता हूं. तो बेसिकली मैं, जैसे आपको मालूम है, मैं गोडॉक, सैमयंग और सिकॉनिक का भी मैं मेंटर हूं. तो मैं आपको ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में भी बीच में बताऊंगा, और वो मेरा काम नहीं है मेन. हम शुरुआत करते हैं कि फोटोग्राफी के बेसिक्स के बारे में. सबको मालूम है कि फोटोग्राफी के बेसिक्स में 3 चीजें होती है. एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ तो सबको मालूम है. इसमें नया कोई नहीं है, नया कुछ चीज नहीं है. बट कुछ चीजें बहुत से फोटोग्राफर्स मिस कर जाते हैं. जैसे कि जब शटर स्पीड आप यूज करते हो, खास करके आप स्टूडियो में जब शटर स्पीड यूज करते हो, तो शटर स्पीड का इफेक्ट अलग अलग होता है. आप सिंक्रो स्पीड के ऊपर चले जाओगे तो आप देखेंगे कि एक ब्लैक बैंड आ जाता है. तो ये बेसिकली जब आप शटर स्पीड से ऊपर जाते हो तब होता है, खास करके स्टूडियो में. दूसरी चीज होती है जब एम्बिएंट लाइट होती है, यानी जो एग्जिस्टिंग लाइट होती है. अगर हम लोग जब शादी की शूटिंग करते हैं तो बहुत बार वीडियो लाइट भी होती है. वीडियो लाइट के साथ अगर आप शूट कर रहे हो तो आप यहां देखेंगे कि मैंने अगर सिंक्रो स्पीड बढ़ाई है 11 के सिंक्रो स्पीड पे, वीडियो लाइट का इफेक्ट ऑलमोस्ट टोटली गया है. बट अगर मैंने सिंक्रो स्पीड के बजाय मैं स्लो शटर स्पीड पे जाता हूं 1/8 या 1/30 पे, तो मुझे एम्बिएंट लाइट आती है. अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं बाद में आपको ये सब कैसे कनेक्ट करना है और इसका फायदा कैसे लेना है ये मैं समझाने वाला हूं. तो ऐसा नहीं है कि वीडियो लाइट जब लोग लगाते हैं तो अपना फोटोग्राफ खराब होने वाला है. जब आप फ्लैश यूज करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है कि फ्लैश से आपका एक्सपोजर चेंज होता है. यानी f8 पे अगर मेरा एक्सपोजर ओवर जा सकता है, 11 पे करेक्ट आ सकता है और 16 पे डार्क जा सकता है या अंडर जा सकता है पिक्चर. तो
फ्लैश का रिलेशनशिप डायरेक्टली एपर्चर से है और दूसरा रिलेशनशिप आईएसओ से है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर हमने AD200 लिया, अभी नया मॉडल आ रहा है, AD300 आ रहा है, 400 लूं क्या? अब सिंपल सी बात है, 100, 200, 400 आईएसओ, आप आईएसओ अगर बढ़ाते जाओगे पिक्चर ब्राइटर होते जाता है। यानी कि अगर मेरे पास 200 वॉट सेकंड की AD200 भी है और मुझे एक आध शॉट के लिए या कुछ शॉट्स के लिए मुझे आईएसओ बढ़ाना पड़ा, तो मैं 200 या 400 के आईएसओ पे भी जा सकता हूं और मेरा एक्सपोजर सही आएगा। नॉर्मली हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग 100 आईएसओ पे पकड़ के बैठ जाते हैं कि 100 आईएसओ पे ही शूट करना है। 100 आईएसओ पे बेस्ट रिजल्ट आता है, वो बात सही है, बट आजकल के जो मॉडर्न कैमराज आए हैं वो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं बहुत हाई आईएसओ में। इसलिए काफी फोटोग्राफर्स ऐसा भी कर रहे हैं कि फ्लैश यूज ही नहीं कर रहे और सीधा हाई आईएसओ पे शूट करते हैं। तो ये एक फायदा भी है और नुकसान भी है। दूसरी चीज जो है वो है आप लाइट सब्जेक्ट से कितना दूर लेके जाते हो। जब जो फोटोग्राफर्स पहले मैनुअल फ्लैश यूज करते थे उनको ये मालूम होगा कि जो विविटार 285 या मेड्स वगैरह के जो फ्लैशेस होते थे, जब हम लोग नजदीक जाते थे, पहले जो गिरीश मिस्त्री जी बोलते हैं 56-60 का फॉर्मूला होता था, 56-60 का फॉर्मूला लोग यूज करते थे। नजदीक जाते थे तो एपर्चर डाउन करने का, पीछे आएंगे एपर्चर ओपन करने का, ये अपना सिंपल फॉर्मूला होता था। मतलब क्या होता था कि लाइट जब नजदीक जाती थी तो इंटेंसिटी बढ़ती थी, इसलिए हम लोग स्टेप डाउन करते थे, और जब हम पीछे आ जाते थे ग्रुप फोटो कवर कर ओपन कर देते थे ताकि पिक्चर ब्राइट हो जाए। तो लाइट अगर हम आगे पीछे लेके जाए तो भी हमारा इंटेंसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपने को समझ में आने चाहिए। सबसे पहला है कलर। फिल्म के जमाने में लोगों को लाइट के कलर का कोई लेना देना नहीं था। हम लोग एक फ्लैश यूज करते थे, बहुत फोटोग्राफर यूज करते थे, 23 नंबर की फ्लैश, जिसमें फुल और हाफ ऐसे 2 पावर होते थे, सबको याद होगा। उसमें जो कलर टेम्परेचर था वो बहुत जबरदस्त वेरी करता था, बट उस जमाने में कलर का जो करेक्शन था वो लैब वाला करता था, इसलिए हमारे सर पे वो झंझट नहीं होती थी। तो कलर कुछ भी आए वो लैब वाला नेगेटिव से करेक्ट करके दे देता था। अभी डिजिटल के जमाने में हमें वो करेक्शन अपने आप करना है। तो हम कैसे करते हैं? या तो हम व्हाइट बैलेंस से करेक्शन करते हैं, और अगर अपने को कलर ऑल्टर करना है या चेंज करना है तो हम लोग जेल्स यूज करते हैं। दूसरा फर्क जो होता है वो होता है लाइट की क्वांटिटी, कि कितनी लाइट है। तो ये लाइट की जो क्वांटिटी है, प्रमाण कितना है लाइट का, ये हम लोग डिसाइड करते हैं, और ये कंट्रोल करने के लिए अपने पास एपर्चर और शटर दोनों है। बट स्टूडियो लाइट या फ्लैश अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके पास कंट्रोल सिर्फ एपर्चर का है, या फ्लैश की पावर अप डाउन करने का वो एक और कंट्रोल होता है। दूसरी चीज है लाइट की क्वालिटी, सॉफ्ट लाइट है या हार्ड है या उसके बीच में है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप शूट कर रहे हो। अब ये हम लोग स्टूडियो के अंदर भी शूट कर रहे हैं या हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, सब चीजों में ये चीजों का ध्यान पहले रखना होता है। एक और चीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लाइट की डायरेक्शन। अब अपने को लाइट लगाने की क्या जरूरत है? लाइट लगाने की जरूरत ये होती है कि बहुत बार लाइट का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं होता है। यानी कि क्या, अगर मैं आउटडोर में गया, नॉर्मली टिपिकल जो सीन होता है, हम लोग बोलते हैं कि चलो प्री वेडिंग के लिए सुबह 7 बजे निकलना है, 7 बजे आपको साइट पे पहुंचना है। सबको मालूम है 8 साढ़े 8 बजे तक लोग असेंबल हो जाएंगी पूरी टीम। हम लोग उधर पहुंचते पहुंचते 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, या 10 बजे फिर खाना नाश्ता हो जाता है, 11 बजे का शूटिंग हो जाता है। जो आपकी सुबह की 7 बजे की लाइट थी, जो फोटोग्राफर ने सोची थी, वो लाइट कंप्लीटली गई है और लाइट अब ऊपर से आ रही है। तो लाइट का
डायरेक्शन बदल गया, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? तो ऐसे सिचुएशन में आपको लाइट का डायरेक्शन बदलना है, और वो बदलने के लिए आपको लगता है एक पावरफुल लाइट, यानी AD600 या AD1200 ऐसे कोई पावरफुल लाइट्स लेके आपको लाइट नया सन बनाना पड़ता है। तो ये आप यूज करके लाइट का डायरेक्शन बदल सकते हो। दूसरा एक बहुत बड़ी गलती जो फोटोग्राफर्स करते रहते हैं वो है हम लोग ऑटो वाइट बैलेंस पे शूट करते हैं। अब ज्यादातर ऑटो वाइट बैलेंस ठीक भी रिजल्ट देता है, बट ऑटो वाइट बैलेंस अगर सब्जेक्ट प्रिडोमिनेंटली एक ही कलर का है, यानी जैसे अभी इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि बैकग्राउंड रेड है, इसमें व्हाइट कुछ भी नहीं है, बट अगर मैंने ऑटो वाइट बैलेंस यूज किया तो आप देखेंगे कि जो फ्लैश टोन है, स्किन टोन है, वो पूरा बदल गया है। जो बंदे का ब्लैक जैकेट है वो ब्लूइश हो गया है। वही चीज अगर मैंने फ्लैश का सेटिंग यूज किया, क्योंकि मैं फ्लैश यूज कर रहा हूं स्टूडियो में, तो मेरा कलर ज्यादा अच्छा आता है, बेटर आता है। ऑटो वाइट बैलेंस से भी अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए या बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपने ग्रे कार्ड यूज करना चाहिए और कस्टम वाइट बैलेंस करना जरूरी है। बहुत फोटोग्राफर्स है जिनको लगता है कि हम लोग केल्विन पे रखेंगे और एक ही पर्टिकुलर केल्विन पे रखते हैं, बट केल्विन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको कस्टम वाइट बैलेंस से मिलेगा। अगर आपको बाद में कुछ सवाल या ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में, सिर्फ लिख के रखिए, मैं थोड़े टाइम के बाद एक ब्रेक लूंगा और आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा। फोटोग्राफर्स या आर्टिस्ट, ये दोनों का एक ही प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को एक 2 डायमेंशनल मीडिया होती है अपने पास। जो एल्बम होता है या जो फोटोग्राफ होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों होती है। एक फ्लैट सरफेस पे हम लोग पिक्चर क्लाइंट को प्रोड्यूस करके दे देते हैं, बट वो फ्लैट ऑब्जेक्ट आपको दिखाना होता है कि ये राउंड है या स्क्वायर है या क्यूब है। उसमें अपने को 3 डायमेंशनल क्वालिटी लानी होती है, यानी हमको उसमें डेप्थ लाना होता है। जब हम आंखों से देखते हैं तो हमें एक एक्स, वाई और जेड एक्सिस जो डेप्थ दिखता है, वो डेप्थ हमारे फोटोग्राफी में आपको कैप्चर करना है। वो डेप्थ अगर कैप्चर नहीं होती है तो पिक्चर फ्लैट लगता है। तो ये पिक्चर फ्लैट लगने से अवॉइड करने के लिए आपको लाइट्स का यूज करना जरूरी है। तो हम लोग लाइट पिक्चर डार्क हो रहा है या अंडर हो रहा है उसको ठीक करने के लिए यूज नहीं करते हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल क्वालिटी लाइट सब्जेक्ट की लाने के लिए लाइट यूज करते हैं। ये उसका सही पर्पस है। जैसे जैसे हम लोग लाइट नजदीक लेके जाते हैं सब्जेक्ट के, लाइट सब्जेक्ट के साइज के हिसाब से बड़ी होती जाती है और लाइट सॉफ्ट होती जाती है। बहुत फोटोग्राफर्स को लगता है कि लाइट अगर मैंने दूर लेके जाता हूं तो लाइट सॉफ्ट होती है। लाइट दूर लेके जाने से लाइट सॉफ्ट नहीं होती है, सिर्फ उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो जरा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके स्टूडियो में दीवारें व्हाइट है या लाइट कलर की है तो उधर से लाइट बाउंस होके वापस आ रही है, इसलिए वो कॉन्ट्रास्ट कम हो रहा है, बट लाइट की क्वालिटी सॉफ्ट नहीं हो रही है। आप देखेंगे पहले पिक्चर में जो शैडो है वो ज्यादा शार्प दिखता है और लास्ट पिक्चर में, तीसरे पिक्चर में शैडो काफी सॉफ्ट हो गया है। दूसरी चीज जो वापस मैंने बताई थी, हम लोग कैमरा को आगे पीछे करते हैं या एपर्चर से आगे पीछे करके, ये हम लोग बेसिक मैनुअल फ्लैशेस इस तरीके से यूज कर रहे हैं। बैटरी 68% दिख रहा था, स्विच ऑफ कीजिए फोन। यस सर। चवाटे दिनभर सीधो हरामी इनार तो कटला परसेंटेज देख रहा था बैटरी 95% रही, 63 है। अरे हम चवाटे दिनभर हरामी साधो। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है
जिसको हम लोग लाइट फॉल ऑफ बोलते हैं या इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। बीच में मैंने एक गोडॉप्स के लिए प्रेजेंटेशन किया था इसी के ऊपर। मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं कि जैसे जैसे लाइट सब्जेक्ट से दूर होती जाती है, लाइट फैल जाती है और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब इसका आपको फर्क किधर पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम ग्रुप फोटो को लेते हैं या कपल का फोटो लेते हैं, आप देखेंगे कि लड़का और लड़की दोनों, अगर मैंने उनको बाजू बाजू में भी खड़ा किया तो बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की ज्यादा फेयर है और लड़का जरा सांवला होता है, या उल्टा हो सकता है। दोनों का स्किन टोन सेम नहीं होता है। अब ऐसे सिचुएशन में मैंने अगर लाइट नजदीक ली लड़की की, जो ज्यादा गोरी लग रही है, तो वो और भी ज्यादा गोरी लगती है। बट उसके पीछे 2 फुट के पीछे जो लड़का है उसके ऊपर बहुत कम लाइट जा रही है, तो वो ज्यादा डार्क लगेगा। यही चीज अगर मुझे अवॉइड करनी है तो एक मुझे सिंपल सी चीज करनी होती है। ये याद रखना है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो 1 फुट पे मेरा 100% आउटपुट होता है, 2 फुट पे मेरा आउटपुट 25% ड्रॉप हो जाता है, 3 फुट पे 11% हो गया है और 4 फुट पे लिटरली 5 या 6% ही लाइट का आउटपुट जा रहा है। तो लाइट जैसे जैसे दूर होती जाती है सब्जेक्ट से, लाइट की इंटेंसिटी उतनी उतनी कम होती जाती है। 8-9 फुट के बाद तो आप पूछो ही मत, क्योंकि बहुत ही कम लाइट जा रही है। ये लाइट स्टार्ट से कंपैरिजन में है। तो स्टार्ट, अगर आपने, ये टिपिकल सिनेरियो कब होता है, जब हम ग्रुप शूट करते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा फर्स्ट रो में लाइट ज्यादा है और जो दूसरा या तीसरा रो होता है उसमें लाइट कम जा रही है। उसमें लाइट कम जाने की वजह क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत फोटोग्राफर्स को लगता है कि इसका सोल्यूशन होगा कि मैं बड़ी लाइट कर दूं, तो इसका सोल्यूशन बड़ी लाइट करने से नहीं है। आई डोंट नो, एक सेकंड नाउ। ओके, अगर मैं लाइट को पीछे लेके जाता हूं, यहां पे आप देखेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लाइट को पीछे लेके गया हूं, लाइट वही है, बट दोनों सब्जेक्ट पे अब लाइट इक्वल जाती है। तो इसलिए अगर आपने कभी भी नोटिस किया कि मुझे एक सब्जेक्ट पे लाइट कम जा रही है, दूसरे पे ज्यादा जा रही है, तो आप लाइट पीछे लेके जाओगे तो दोनों पे इक्वल लाइटिंग आएगी। ये एक सोल्यूशन होता है। दूसरी चीज होती है, अब इसका दूसरा फायदा है कि अगर मैंने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड के पास रखा, ये पर्टिकुलर सॉफ्ट बॉक्स लेके मैं ये मैनिक्विन को लाइट अप कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड ऑलमोस्ट व्हाइट हो गया है, और बैकग्राउंड का ओरिजिनल कलर क्या है, वो ग्रे है। तो मुझे अगर स्टूडियो बनाना है तो मैं दीवारें ग्रे प्रिफर करता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि एक उसका मैं व्हाइट बैकग्राउंड बना सकता हूं, दूसरा वही बैकग्राउंड को मैं जरा सा सब्जेक्ट को पीछे लेके जाता हूं और लाइट को जरा आगे लेके आता हूं। सब्जेक्ट पे लाइटिंग उतनी ही है, बट बैकग्राउंड जो है वो ग्रे चला गया है। तो सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड का डिस्टेंस मैंने सिर्फ चेंज किया है, तो बैकग्राउंड वापस ग्रे हो गया है, जो मेरा ओरिजिनल कलर था। मैं और भी अगर आगे लेके आता हूं तो मेरा सब्जेक्ट, मेरे बैकग्राउंड पे लाइट और भी कम जाएगी। बैकग्राउंड पे अगर मैं लाइट कट कर सकता हूं,
कट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं जैसे मैंने दिखाया आपको डिस्टेंस बढ़ा सकता हूं, अगर मेरा स्टूडियो छोटा है तो मैं हनीकॉम्ब ग्रिड भी यूज कर सकता हूं सॉफ्ट बॉक्स के ऊपर भी। उसके बाद मैं बैकग्राउंड को अलग से लाइट कर सकता हूं और उसमें अगर मैंने जेल्स लगाए तो मेरा एक ही ग्रे बैकग्राउंड ब्लू रेड ग्रीन जो कुछ चाहिए वो कलर का बन सकता है। अगर मुझे ग्रेडियंट चाहिए यानी नीचे लाइट और ऊपर डार्क वो भी हो सकता है। व्हाइट चाहिए तो व्हाइट भी हो जाता है, मैंने उसके ऊपर सिर्फ लाइट मारनी है। तो एक ही बैकग्राउंड को मैं स्टूडियो में अलग अलग स्टाइल्स में यूज कर सकता हूं। ये सिर्फ लाइट के द्वारा कर रहा हूं मैं। और मैं ब्लैक बैकग्राउंड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रे यूज कर रहा हूं, क्योंकि ग्रे को मैं व्हाइट भी कर सकता हूं और ग्रे को मैं ब्लैक भी कर सकता हूं। अब हम लोग लाइट की क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। लाइट की क्वालिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि ये लाइट सॉफ्ट है या ये लाइट हार्ड है। अगर सॉफ्ट बॉक्स यूज करते हैं तो लोगों को लगता है कि चलो सॉफ्ट बॉक्स यूज किया तो लाइट सॉफ्ट ही आएगी। नहीं, अगर आपका सॉफ्ट बॉक्स नजदीक है सब्जेक्ट के तो लाइट सॉफ्ट होगी, बट यही लाइट अगर आप दूर लेके जाओगे तो लाइट हार्ड होनी चालू हो जाएगी। यहां पे आप देखेंगे कि मैंने लाइट पीछे लेके गया हूं तो आप देखेंगे आंखों में हाईलाइट छोटी हो गई है। शैडोज जो आ रहे थे वो अब काफी शार्प टाइप के शैडोज आ रहे हैं। पहले शॉट में शैडोज उतने शार्प नहीं थे, अभी ये शार्प शैडोज आ रहे हैं। तो लाइट ये जब हम लोग आउटडोर में शूट करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आउटडोर में या अगर आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हो या कोई भी टाइप का शूट कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको लाइट जो है वो जितना सब्जेक्ट के नजदीक लेके जा सकते हो उतना लेके जाना है। तो आपको दो टाइप के फायदे होंगे, एक तो आपकी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी और दूसरी आपकी लाइट की क्वालिटी सॉफ्ट रहेगी। अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है जो है राउंड हेड के लाइट्स आए हैं मार्केट में। अब तक हम लोग रेक्टेंगुलर या स्क्वेरिश हेड यूज करते थे, अब नए राउंड हेड्स आए हैं। बहुत फोटोग्राफर्स मुझे पूछते हैं सर राउंड हेड का कोई फायदा है या नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इधर एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि रेक्टेंगुलर हेड जो उसका फ्रेनेल होता है उसके फ्रेनेल के साथ जब आप शूट करते हो तो उसका लाइट का पैटर्न आप देखेंगे। ये AD200 पे मैंने शूट किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसका फ्रेनेल पैटर्न ऐसा आ रहा है। ये 6 फुट पे है डिस्टेंस बैकग्राउंड से, 6 फुट पे मैंने रखा है, लगभग 2 मीटर। और आप देखेंगे कि लाइट का फैलाव जो है वो राउंड का जो है वो स्टूडियो लाइट के जैसे है, और जो रेक्टेंगुलर हेड्स है उनका एक फ्लैटिश ऐसा पैची लाइट आ जाती है उससे। यही चीज अगर मैं नजदीक लेके जाता हूं तो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ गई है बट फैलाव वैसे का वैसा ही है। दूसरी चीज जो है लाइट का कलर। नॉर्मली जो हम लोग व्हाइट बैलेंस करते हैं वो इस प्रकार होता है कि 1000 केल्विन के आसपास जो आपका मोमबत्ती की लाइट होती है वो 1000 केल्विन के आसपास होती है। बल्ब जो होते हैं वो 3200 या 3000 के आसपास होते हैं। फ्लैश जो होती है वो करीबन 5000 केल्विन के आसपास होती है। तो ये जनरल लाइट के टेम्परेचर्स हैं। हम लोग जो व्हाइट बैलेंस यूज करते हैं तो ऑटो व्हाइट बैलेंस आप देखेंगे कि उसकी रेंज जो है ये 3000 केल्विन से लेके 7000 केल्विन तक ही है। जो प्रीसेट्स भी है वो भी उतनी ही रेंज में होते हैं, 3200 से लेके 7000 केल्विन तक की रेंज होती है। केल्विन स्केल का जो रेंज है वो 2500 से लेके 10,000 तक है। बट आप देखेंगे कि कस्टम व्हाइट बैलेंस का रेंज सबसे ज्यादा है, वो 2000 केल्विन से शुरू होता है। तो इसीलिए कस्टम व्हाइट बैलेंस आपको सबसे एक्यूरेट व्हाइट बैलेंस दे सकता है, तो आपके कलर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट आएंगे। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कि कलर कंसिस्टेंट है या नहीं।
अब ये पर्टिकुलर सीरीज में मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने क्या फ्रेम रेट से शूट किया हुआ है, और यहां पे मैंने AD600 Pro यूज की हुई है लाइट। तो आप देखेंगे मैंने कंटिन्यूअस शूट किया है, बट लाइट का कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे कि हर एक्सपोजर वैसे का वैसा ही आया है। तो उसकी जो कलर्स है वो ऑल थ्रू आउट वैसे के वैसे ही है। उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि एक डार्क हुआ है, एक लाइट हुआ है, एक पिंक है, एक ब्लू है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कलर्स एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट है। तो जो प्रो सीरीज जो चालू की है गोडॉक्स ने, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कलर कंसिस्टेंसी का। अब जो लाइट की क्वांटिटी है वो हम लोग एपर्चर, शटर स्पीड और ISO से कंट्रोल करते हैं। ये स्टैंडर्ड कंट्रोल्स है अपने पास। बट जो लाइट की क्वालिटी है वहां पे आप देखेंगे कि हम 3 चीजें देखते हैं, हाईलाइट, शैडो और मिड टोन। तो लाइटिंग जो चीज है वो बेसिकली शैडोज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपके पिक्चर में शैडोज नहीं है, पूरा फ्लैट है, तो आपको आपके पिक्चर में डेप्थ नहीं आएगी और पिक्चर फ्लैट लगता है। आप मुझे भी अभी देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मेरे चेहरे पे भी जो लाइट है वो यहाँ पे एक साइड से एक टाइप की लाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइटिंग डार्कर है। बैकग्राउंड में जो ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हुए हैं वो भी लिट है, बट आपका अटेंशन मेरे चेहरे पे ही जाएगा। तो ये जो सेटअप है वो मैंने लाइटिंग सेटअप करके किया हुआ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझे हाईलाइट दिखेगा आपको। तो ये मेरा लाइटिंग किया हुआ है। अब जिस साइड से आप लाइट करते हो उसके ऑपोजिट साइड में उसका शैडो आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होती है कि लाइट का जो शैडो है वो आपको किस तरीके से आता है। आप बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, बट ये जब तक आपको समझ में नहीं आता है कि लाइट किधर रखनी है और उससे किस प्रकार का शैडो आता है, तो आपको लाइटिंग समझ में नहीं आएगी। बहुत बार फोटोग्राफर्स मैगजीन्स वगैरह में फोटोज देखते हैं कि ये बहुत अच्छा है और वो एग्जैक्टली उसको कॉपी करने के लिए जाते हैं। वो कॉपी तब तक नहीं हो पाता है जब तक आप उसकी लाइटिंग प्रॉपरली समझ में नहीं आती है और उसका पोजिंग भी समझ में आना जरूरी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, पोज कॉपी करने के लिए जाते हैं बट लाइटिंग नहीं कॉपी होती है, और कोई लोग लाइटिंग कॉपी करने जाते हैं, पोज कॉपी नहीं होती है। तो पोज और लाइटिंग ये दोनों इंटर रिलेटेड है और आपको दोनों को समझना पड़ता है। तो यहां पे मैंने जानबूझ के ये 3D में मैंने सीक्वेंस रखा है। तो आपको 3D इलस्ट्रेशंस दिखेंगे ताकि आपको लाइट का पोजीशन भी समझ में आए और उसका इफेक्ट भी समझ में आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइट कैमरा के बहुत ही नजदीक है और आपको नाक के नीचे एक शैडो दिखेगा और चिन का शैडो दिखेगा। यही चीज मैंने लाइट थोड़ी सी साइड में मैं लेके जाता हूं तो नाक का जो शैडो है वो साइड में चला गया है और एक साइड पे अभी शैडो आ रहा है। तो लाइट एंड शेड का इफेक्ट इमीडिएटली चालू हो गया है। लाइट में और भी एंगल में लेके जा रहा हूं, ये करीबन 45 डिग्रीज एंगल पे लेके जाता हूं, तो लाइटिंग का इफेक्ट, जिसको बहुत फोटोग्राफर्स रेम्ब्रांट इफेक्ट बोलते हैं, उस टाइप का लाइटिंग आ रहा है। एक लाइट का ट्रायंगल इधर फॉर्म हो जाता है। लाइट में एब्सोल्युटली साइड में लेके जाता हूं तो ये सिर्फ आधा चेहरा लाइट करता है, इसको लोग स्प्लिट लाइटिंग बोलते हैं। यही लाइट मैं पीछे से देना चालू करता हूं तो इसको हम लोग कट लाइट बोलते हैं। और बिल्कुल पीछे से अगर मैंने दी तो इसको हेलो का इफेक्ट आता है, रिम लाइट भी बोलते हैं लोग। तो ये टाइप का इफेक्ट आपको आ सकता है एक ही लाइट से, सिर्फ आप कहां रखते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है।
अब बेसिकली दो टाइप की लाइटिंग्स होती हैं, सिर्फ दो टाइप की लाइटिंग्स है। आपको शायद सुनने में जरा अजीब लगता होगा कि दो ही टाइप की लाइटिंग्स है। हाँ, जिसको हम लोग ब्रॉड लाइटिंग बोलते हैं और शॉर्ट लाइटिंग बोलते हैं। अब ब्रॉड लाइटिंग क्या है और शॉर्ट लाइटिंग क्या है, ये मैं आपको पहले समझाता हूं। जब हम इस पर्टिकुलर फेस में आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर शॉट में आप देखेंगे कि मॉडल एक साइड पे देख रही है, बट लाइट जो है वो वही साइड को लाइट अप कर रही है। यानी चेहरे का जो ये पार्ट है, ब्रॉड पार्ट जो है, ये हाईलाइट हो रहा है, तो इसे हम लोग ब्रॉड लाइटिंग बोलते हैं, क्योंकि चेहरे का ब्रॉडर साइड लाइट अप होता है। जब हम कैमरा के ऊपर फ्लैश लगाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैश होती है, ग्राउंड फ्लोर पे कैमरा होता है, और आप शूट करते हो, तो आपको हमेशा यही लाइटिंग मिलेगी। इसके अगेंस्ट आप देखेंगे कि जो शॉर्ट लाइटिंग है वो क्या है, हम लोग इसे शॉर्ट लाइटिंग बोलते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि लाइट जो है वो इधर आ गई, लाइट का डायरेक्शन मैंने चेंज किया हुआ है। आजकल जो लाइट्स आए हैं मार्केट में, ये हम लोग ऑफ कैमरा यूज कर सकते हैं। एक सिंपल ट्रिगर के द्वारा आप ये लाइट ऑफ कैमरा यूज कर सकते हो, और ये ऑफ कैमरा अगर आप यूज कर रहे हो तो ये आप एडवांटेज ले सकते हो। पहले शॉट में आपने देखा होगा चेहरा बहुत ब्रॉड लग रहा था, इस साइड पे आप देखेंगे कि चेहरा जो है उसका शेप आना चालू हो गया, ये लाइट एंड शेड का इफेक्ट आ रहा है। तो ये अगर आपको इस टाइप की इफेक्ट चाहिए तो आपको कैमरा और फ्लैश सेपरेट करना जरूरी है। ये जरूरी है अगर आप वेडिंग के भी फोटोज निकाल रहे हो, फंक्शंस शूट कर रहे हो, आप स्टूडियो में शूट कर रहे हो, या आप आउटडोर शूट कर रहे हो, कहीं पे भी आप शूट कर रहे हो, लाइटिंग आपको इस तरीके से शूट करनी पड़ेगी। मेन लाइट सेपरेट ही रखनी है, वही डायरेक्शन से नहीं आनी चाहिए, तो आपको चेहरे को शेप मिल जाता है। इसे हम लोग शॉर्ट लाइटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली लाइटिंग के 5 पैटर्न्स मैं दिखा रहा हूं, जिसमें बटरफ्लाई आई, लूप आई, रेम्ब्रांट आई, स्प्लिट आई और डबल किकर आई। ये लाइटिंग के पैटर्न्स है। आप कोई वर्कशॉप में आप कोई भी लाइटिंग का वर्कशॉप अटेंड करो, ये चीजें आपको 100% वो सिखा देंगे। बट मैं आपको वही चीज एक सिंपल इसमें बता रहा हूं कि बटरफ्लाई लाइटिंग क्या है। बटरफ्लाई लाइटिंग में आप देखेंगे कि आंखों में इस प्रकार की हाईलाइट आ गई है, नाक के नीचे एक शैडो आया है, लाइट ऊपर से नीचे आती है। जैसे अभी मेरे चेहरे पे जो लाइट है ये ऑलमोस्ट बटरफ्लाई के जैसे है, मेरे मूंछों की वजह से शैडो आपको पता नहीं चलेगा, और लाइट मैंने काफी सॉफ्ट लाइट यूज की हुई है। ये लाइटिंग कहां यूज होती है? ज्यादातर फिल्म स्टार्स के टाइम पे ये लाइटिंग यूज करते थे। पैरामाउंट स्टूडियो करके जो हॉलीवुड का फेमस स्टूडियो था, उसमें इसी टाइप की लाइटिंग यूज की जाती थी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से। आज भी लाइटिंग इसी स्टाइल की यूज होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिल्म स्टार्स पे उस जमाने में भी इस टाइप की लाइटिंग यूज की जाती थी। लूप लाइटिंग जो है ये मेरी सबसे फेवरेट लाइटिंग है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब फेसेस पे चल सकती है। यहां पे आप देखेंगे कि चेहरे का जो नाक की हाईलाइट, नाक का जो शैडो है वो हल्का सा शैडो आता है, उससे ज्यादा शैडो नहीं है। तो मुझे लाइट और यानी फ्लैश और कैमरा के में ज्यादा डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं, 1-8 मीटर के डिस्टेंस पे भी मैं ये रिजल्ट अचीव कर सकता हूं। अब यहां पे आप देखेंगे कि मैगजीन्स के कवर्स पे भी आज ये काफी पॉपुलर लाइटिंग है और सबसे यूनिवर्सल लाइटिंग है। ऑलमोस्ट सब फेसेस पे ये लाइटिंग चल सकती है। रेम्ब्रांट जो लाइटिंग है ये बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइट का ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, तो इसे रेम्ब्रांट लाइटिंग बोलते हैं। ये एक फेमस
फ्लेमिश पेंटर थे रेम्ब्रांट करके, उनके पेंटिंग्स में ये लाइटिंग बहुत कॉमन थी और उनके ऊपर ये लाइटिंग का नाम दिया है। ये है रेम्ब्रांट और उनके चेहरे पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगुलर लाइट है। स्प्लिट लाइटिंग जो है ये बेसिकली आधे चेहरे को ही लाइट करती है और वहां पे आप देखेंगे कि आधा चेहरा लाइट हो जाता है और दूसरा आधा चेहरा डार्क हो जाता है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि ये लाइटिंग मैं कहाँ यूज कर सकता हूं क्योंकि आधा चेहरा डार्क गया है, बट अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी बाहर निकालनी है तो उसमें यूज हो जाता है। आप देखेंगे कि टाइम मैगजीन में किसके पर्सनैलिटी पे वो लुक दी है, तो ये अगर कोई आदमी आपको पसंद नहीं है तो उसके पर्सनैलिटी पे भी जरा नेगेटिव पर्सनैलिटी भी पोर्ट्रे हो सकती है ये लाइटिंग से। डबल किकर लाइटिंग जो है ये सबसे इंटरेस्टिंग लाइटिंग है। ये आप देखेंगे कि दो साइड से पीछे लाइट्स आती है सब्जेक्ट पे और दोनों साइड से हाईलाइट आती है, प्लस एक मेन लाइट होती है। तो ये डबल किकर जो लाइटिंग है ये बहुत ही पॉपुलर लाइटिंग थी एक जमाने में और एक पर्टिकुलर फोटोग्राफर है जिनका नाम है यूसुफ काश, उन्होंने ये काफी यूज किए और उनके काफी फोटोज में ऐसी टाइप की लाइटिंग दिखेगी। ये पोर्ट्रेट्स में सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर्स में से एक माने जाते हैं। अब हम आते हैं और कुछ पोर्ट्रेट्स पे। ये पोर्ट्रेट्स मैंने शूट किए हुए हैं। ये सेम चीज जो मैंने आपको अभी तक दिखाई उसी का मैं एक मॉडर्न वर्जन दिखा रहा हूं। मैं कोई भी पोर्ट्रेट ऐसे ही शूट नहीं करता हूं, मैं प्लान करता हूं। तो यहां पे ये एक रेगुलर लुकिंग कपल है, ये कोई मॉडल्स नहीं है, कुछ ये नहीं है। तो मैंने इस टाइप का एक स्केच बना के रखा था और वो स्केच का एक रेफरेंस से लेके मैंने ये एग्जीक्यूशन किया है। सेम चीज मैं बहुत बार करता हूं। अगर ये सब शॉट्स आप देखेंगे ये मैंने ऑर्डिनरी लुकिंग लोगों को लिया है। पूना में मैं जहां रहता था मेरे सामने वाले फ्लैट में ये लोग रहते थे तो उनके मैंने फोटोज निकाली। ये एक दूसरा स्टाइल है। अगेन ये हॉलीवुड का जो स्टाइल था उसी टाइप का पिक्चर आज के जमाने में मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है और आप देखेंगे कि उसी टाइप का लुक आ सकता है। तो पोर्ट्रेट का मतलब है कि एक पूरी पर्सनैलिटी क्रिएट करनी होती है। यहां पे आप देखेंगे वही वो डबल किकर वाली जो लाइट थी उसी का एक वेरिएंट है। सेम चीज मैंने रेगुलर लोगों पे भी मैंने यूज किए और इफेक्ट अच्छा आता है। तो इन्हें हम लोग पोर्ट्रेट्स बोल सकते हैं। तो आप मैगजीन्स में देख सकते हैं, अलग अलग फोटोज देख सकते हो और उसमें से अगर इंस्पिरेशन लेके अगर आपने प्रॉपर शूट किया, प्रॉपर लाइटिंग की, प्रॉपर पोजिंग की तो आपको उसी टाइप का इफेक्ट मिल सकता है और वो पिक्चर्स बहुत अच्छे लगेंगे। अब ये हम आते हैं आउटडोर में। आउटडोर में ये एक वर्कशॉप था, उसमें मैंने शूट किया हुआ है। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में ये पूरी एरिया है जो मैं बैकग्राउंड की तरह यूज कर रहा था। अब एम्बिएंट लाइट आप देख रहे हो कि मैंने देखा है कि चेहरे पे इस तरीके से उसका सेपरेशन का इफेक्ट सिर्फ आए। इस पर्टिकुलर शॉट में आप
एक्चुअली देख पाएंगे कि मैंने मेरी लाइट किधर रखी है। अब 2.8 पे है, हम और भी इस पे जाएंगे, आगे जाते हैं। 2.8 पे बजाय हम 1.8 पे जाते हैं। अब मेरी शटर स्पीड 1250 हो गई है। 1.8 पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड जो है ये पूरा ब्लर होते जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा हूं, तो यहाँ आप ये दो शॉट्स देखेंगे, पहला शॉट और दूसरा शॉट। सॉरी, एक मिनट। तो ये दो शॉट्स में आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कितना ब्लर हुआ है। एक में मैंने शटर स्पीड सिर्फ बढ़ा दी है। अब ये जो इफेक्ट है, ये चीज आपको प्री वेडिंग में करनी है। अब आउटडोर में जब आप शूट करते हो ये चीज करनी है। अब ये करने के लिए आप ये कैसे करोगे? मेरे पास बहुत सिंपल चीज है, एक मीटर है, उससे मैं मीटर करके कर सकता हूं, बट हर एक के पास ये मीटर नहीं होगा। तो ये इफेक्ट कैसे आप अचीव कर सकते हो? तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। आप देखेंगे ये दो शॉट्स में क्या फर्क है। ये अभी लॉकडाउन में मैंने शूट किया, सिर्फ ये वर्कशॉप में दिखाने के लिए। और फर्स्ट शॉट जो है ये 5.6 पे है, 125 की शटर स्पीड है, 200 आईएसओ पे है, फ्लैश नहीं है। तो ये एम्बिएंट लाइट पे आप देखेंगे मैनिक्विन ये पूरा सब बैकग्राउंड में आ रहा है। ये ऐसा कुछ फैंटास्टिक शॉट नहीं लग रहा है। सेम चीज मैंने आईएसओ कम किया, 100 पे लेके आया हूं और शटर स्पीड बढ़ा के 1000 की, और एचएसएस फ्लैश मोड में मैंने ये यूज किया, फायर किया है। आप देखेंगे बैकग्राउंड डार्क हो गया और यहां से यहां तक एकदम ड्रामेटिक पिक्चर बदल गया। ये अगर मेरे पास स्काई होता, ब्लू स्काई होता, और इंटरेस्टिंग हो जाता। लाइव मॉडल होती तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता, कैमरा एंगल्स वगैरह, वो सब बात अलग है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे थ्योरी समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ आप देखेंगे कि ये मेरे टेरेस गार्डन के शॉट्स है। तो इधर इतने सारे पत्ते पत्ते, फूल, बाम्बू बुम्बू सब दिख रहा है, ये सब पेड़ पौधे इधर ब्लर हो गए। तो ये अचीव करने के लिए आपको क्या करना है? ये फर्स्ट स्टेप है, आपको एपर्चर प्रायोरिटी मोड में शूट करना है, एवी मोड में। अब एवी मोड में आप जब शूट करोगे तो आपको विदाउट फ्लैश देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहां पे 1.8 पे अगर मैंने शूट किया 250 के स्पीड पे 100 आईएसओ पे विदाउट फ्लैश, तो मुझे ऐसा रिजल्ट आ रहा है। इससे मुझे क्या समझ में आया कि 1.8 पे मेरा बैकग्राउंड इतना ब्लर हो जाता है। दूसरी चीज मुझे क्या समझ में आई है कि ये जो बैकग्राउंड है ये अभी भी ज्यादा ब्राइट है, उसको मुझे अंडर करना है। तो मुझे दो चीजें करनी है, एक एपर्चर से मेरा बैकग्राउंड अच्छी तरीके से ब्लर हुआ, बट मुझे बैकग्राउंड को डार्क करना है, तो मुझे फ्लैश यूज करनी है। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैं शटर प्रायोरिटी मोड में गया, टीवी मोड पे गया। टीवी मोड पे एपर्चर मैंने 1.8 ही रखा, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम ओपन पे चला जाएगा। और मैंने शटर स्पीड जो है वो 640 की, शटर स्पीड मैंने बढ़ा दी 100 आईएसओ पे। यहां पे आप क्या देखे होगे कि चेहरा ब्राइट हो गया बट बैकग्राउंड डार्कर हो गया पहले शॉट से। अब मैं इसको फाइन ट्यून कर सकता हूं कि मुझे और डार्क चाहिए या और ब्राइट चाहिए। सब्जेक्ट पे अगर मुझे लगता है कि इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा है तो मैं सब्जेक्ट पे फ्लैश की इंटेंसिटी कम कर सकता हूं या ऊपर कर सकता हूं, जैसे मुझे चाहिए वैसे। और ये मेरा फाइनल शॉट है, 1000th ऑफ अ सेकेंड पे मैंने सेट किया, 1.8 100 आईएसओ विथ फ्लैश। तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड डार्क हो गया है, सन का जो इफेक्ट है वो इधर है। ये पूरा जो लाइट दिख रहा है आपको, ये सनलाइट है।
बट ये जो लाइट है ये सब फ्लैश की लाइट है जो मैंने सॉफ्ट बॉक्स में से बाउंस की हुई है, जस्ट आउट ऑफ द फ्रेम है। गोडॉक्स और बहुत सारे ब्रांड्स में अभी एक नया फीचर आया है, वो है TCM। TCM यानी TTL मीटर को मैनुअल में कन्वर्ट करता है। तो अगर मुझे ये ऐसा शॉट अच्छा लगता है जब मैं आउटडोर में शूट करता हूं, खास करके मैं प्री वेडिंग शूट कर रहा हूं, तो मुझे एक बार ये सेटिंग अच्छा लगा कि मेरा फ्लैश का सेटिंग बराबर है, तो मैं TCM का बटन दबा सकता हूं। TCM का मैंने बटन दबा दिया तो फ्लैश जो है वो ऑटोमेटिकली मैनुअल में चली जाएगी। तो मेरा जो एम्बिएंट लाइट, क्योंकि एम्बिएंट लाइट ऐसी है कि बीच में अगर एक क्लाउड आ गया तो मेरी एम्बिएंट लाइट बदल जाएगी। एम्बिएंट लाइट बदलेगी, TTL मीटरिंग होगा तो मेरा एक्सपोजर ऊपर नीचे चला जाएगा। बट ये चीज अगर मैंने की तो मेरा जो फ्लैश का एक्सपोजर है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो इसलिए पोर्ट्रेट्स के लिए, खास करके अगर आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हो, तो ये मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है। ये TCM मोड है जो आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं कुछ। अब तक का अगर आपको बोर नहीं हुए, सिर्फ 17 लोग हैं मेरे ख्याल से, ज्यादातर लोग बोर होके भाग गए। तो प्लीज अनम्यूट करके आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स में भी आप सवाल पूछ सकते हो। आपको सब ध्यान से सुन रहे थे। नहीं, मैं इसीलिए मैंने अभी ब्रेक लिया है, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि थोड़ा एक ब्रेक दूं। गुड। अगर किसी को सवाल है। हाँ, एक रौनक का एक सवाल है, मैं इसको अनम्यूट। जी हाँ, रौनक। Hello. हेलो, यस सर। Sir, very good evening. Sir, my name is Ronak Savla. सर मुझे ये खाली पूछना था, जैसे कि प्री वेडिंग है या तो हम लोग कुछ इवेंट्स करते हैं ना, तो फ्लैश में एक जूम आता है, हाँ, that starts from 24 and it ends to 105 I guess. करेक्ट। 120 is also there. तो सर जब हम लोग अभी ग्रुप पोर्ट्रेट्स लेते हैं, हाँ, we tend to keep it on a wide mode. तो कहाँ ना कहाँ पीछे है ना, सो वो एक विग्नेट टाइप बनता है। विग्नेट ही कैसा होता है, चारों साइड से ब्लैक ब्लैक होता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इन द फ्लैश लाइट? और पहली बात, ये जूम फ्लैश होता क्या है, मतलब बेसिकली व्हाट इज द टर्म्स? ओके, अभी जो जूम फ्लैश है तो मैं आपको इसमें बताता हूं। मेरे हाथ में अभी मैंने V1 ली हुई है। तो V1 जो फ्लैश है, इसके अंदर भी ये जो फ्रेनेल दिखता है आपको सामने, ये एक लेंस है बेसिकली। तो पीछे जो फ्लैश ट्यूब है वो थोड़ी आगे पीछे जाती है, और उसका जो स्प्रेड है, लाइट का जो स्प्रेड है वो बदलता है। तो ये नॉर्मली आपने कैमरा पे लेंस लगाई है, 24-70 समझो आपने लेंस लगाई है, तो जब आप 24 mm पे जाओगे तो इसका फैलाव ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा और जूम करके 24 करेगा। 70 पे होगा तो वो टेली होके ये उसका पोजीशन, अंदर का पोजीशन चेंज होता है, ट्यूब का आगे पीछे जाता है, और आपको लाइट जरा फोकस देगी। इतना ही उसका मेन पर्पस है। बट ज्यादा जब आप वाइड जाते हो तब ये लाइट उतना फैल नहीं सकती है। तो इसलिए आपको ये, अगर आप ऐसे टाइप का फ्लैश यूज कर रहे हो तो उसके आगे आपको डिफ्यूजर कैप या ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जिससे लाइट और फैलेगी। जो V860 वगैरह थे उसके अंदर भी एक फ्लैप आती थी, इसमें वो फ्लैप नहीं है, इसमें आपको एक्सेसरी एडिशनल लगानी पड़ती है, तो उससे लाइट फैल जाएगी। तो बेसिकली वो इफेक्ट होता है जूम का। मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगा कि ये फ्लैशेस, कोई भी फ्लैश आप डायरेक्टली यूज करें। अगर आपको फ्लैश यूज करना है तो सबसे, मेरे पीछे मैंने सेटअप रखा है, तो आप देखेंगे ये जो सेटअप है उसमें 2 टाइप के लाइट्स लगे हुए हैं। एक पे मैंने ब्रैकेट लगा के एक अम्ब्रेला लगाई हुई है, ये सिल्वर अम्ब्रेला है। ये एक सिंपल सेटअप है। ब्रैकेट आपको मार्केट में कहीं पे भी मिलेगा या अमेजोन में भी मिल जाएगा लॉकडाउन खुलने के बाद।
आप कैमरा हाथ में पकड़ सकते हो, ये जो फ्लैश है ये अम्ब्रेला में बाउंस करनी है, क्योंकि क्या हो जाता है, ये जो लाइट है इसकी साइज इतनी ही है, ये फैलेगी बट लाइट सॉफ्ट नहीं करेगी। वो जो अम्ब्रेला है उसका लाइट का फैलाव इतना ज्यादा होगा, तो लाइट सॉफ्ट रहेगी और एट द सेम टाइम फैलेगी। जो आपका विनिगेटिंग का इफेक्ट होता है वो उसमें उतना नहीं होगा। सर एक दूसरे क्वेश्चन है। जी हाँ, ग्रे कार्ड, एक मिनट, ये जो कुछ हाई शटर स्पीड से ड्रामेटिक इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, वही तो मैंने आपको बताया कि हाई शटर स्पीड जो है उसको आपको अगर ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करना है तो आपको या तो नहीं, सनलाइट से ज्यादा पावरफुल वो लाइट को बनाना होता है। तो मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट मैंने टीटीएल मीटरिंग लिया एपर्चर प्रायोरिटी मोड से, जिससे मैंने बैकग्राउंड कितना मैं ब्लर कर सकता हूं वो मुझे पता चला। अगर मैंने इस टाइप का मीटर यूज किया, ये जो है मेरे हाथ में अभी आएगा, वो है सिकॉनिक का मीटर। ये सिकॉनिक मीटर मुझे डायरेक्ट रीडिंग दे देता है। इसके ऊपर ये जब मैं ऑन करूंगा तो मुझे डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगा। ये सिकॉनिक का मीटर है, इसमें मुझे डायरेक्ट परसेंटेज आ जाता है कि फ्लैश इतना परसेंट है और एम्बिएंट लाइट इतना परसेंट है, तो दोनों का मुझे बैलेंस इमीडिएटली मिल जाता है। बट ये अगर मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप नीचे बार्स देख रहे हो, तो उसमें आपको फ्लैश का वगैरह इंटेंसिटी सब पता चल जाता है। तो वो फ्लैश का भी कंटेंट दिखाता है और लाइट का भी कंटेंट दिखाता है, और टोटल एक्सपोजर जो है वो इधर आपको बताता है। वो ये पर्टिकुलर मीटर करता है या इसके ऊपर के मीटर्स करते हैं। इसके नीचे वाले जो सिकॉनिक के मीटर है उसमें ये फंक्शन नहीं है। दूसरी चीज, वो अगर ये मीटर मेरे पास नहीं होगा तो मुझे सोल्यूशन जो है वो मैंने जो आपको बताया वो है कि पहले एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे मुझे शूट करना है। एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे जो मुझे रीडिंग आता है उससे मुझे ये आइडिया आ जाती है कि बैकग्राउंड कितना ब्लर करना है, और शटर प्रायोरिटी पे मुझे आइडिया आ जाएगी कि मेरा बैकग्राउंड कितना डार्क चाहिए। तो स्काई मुझे कितना ड्रामेटिक करना है वो शटर प्रायोरिटी मोड से पता चलेगा। उसके बाद शूट करते समय मुझे मैनुअल में जाना है, यानी मुझे 3 शॉट्स लेने पड़ेंगे। फर्स्ट शॉट एपर्चर प्रायोरिटी से मुझे ओवरऑल एक्सपोजर पता चल जाता है कि अंदाजे मुझे ये एक्सपोजर मिल रहा है 1.8 या जो कुछ मेरी लेंस है उसके ऊपर से। जो शॉट्स मैंने आपको दिखाए वो मैंने सबसे सस्ती लेंस 50mm 1.8 पे दिखाए, तो 50mm 1.8 पे भी आपको ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो है टीवी मोड या शटर प्रायोरिटी मोड पे आपको बैकग्राउंड कितना डार्क करना है वो आपको समझ में आता है, यानी स्काई को कितना ड्रामेटिक करना है। ये दोनों का वैल्यूज आपको मिल गया, एपर्चर मिल गया, आपको शटर स्पीड मिल गई। अब बचा क्या? फ्लैश का आउटपुट। तो आपको सिर्फ फ्लैश को या तो नजदीक या दूर लेके जाना है या फ्लैश की पावर ऊपर नीचे करनी है और आपको रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा सवाल था कि ग्रे कार्ड कैसे यूज करना है। ग्रे कार्ड यूज जो है वो बेसिकली व्हाइट बैलेंस के लिए यूज होता है, मीटरिंग के लिए भी यूज होता है, बट वो अलग सब्जेक्ट है। सिंपल सी चीज होती है। मैं अभी ग्रे कार्ड जो है मेरे पास, मैं एक ग्रे कार्ड यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट में बहुत सारे ग्रे कार्ड अवेलेबल हैं, बट जो अच्छा वाला एक ग्रे कार्ड है वो ये है, ये लास्टोलाइट का आता है। ये ग्रे कलर का ही है। आप इसको शूट करो और व्हाइट बैलेंस में जाके कस्टम व्हाइट बैलेंस पे जाना होता है। कस्टम व्हाइट बैलेंस का सेटिंग ये पिक्चर को दे देना है, आपका व्हाइट बैलेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कलर्स जो आपके है वो 90% करेक्ट आ जाएगी। 99% तक करेक्ट आ जाते हैं कलर्स सिर्फ ये ग्रे कार्ड पे। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, इन आउटडोर प्री वेडिंग हाउ मेनी मैक्सिमम लाइट्स यू यूज? हाँ,
देखिए प्री वेडिंग के टाइम पे मैंने 3 लाइट्स भी यूज किए, 5 लाइट्स भी यूज किए हुए। मैं लिटरली आउटडोर में पूरा स्टूडियो सेटअप कर सकता हूं और स्टूडियो सब लाइट्स यूज कर सकता हूं, यानी एक मेन लाइट भी होगी, एक फिल लाइट भी होगी, एक कट लाइट भी होगी, ये सब यूज हो सकता है। इसमें फर्क इतना ही होता है कि आपको डिसाइड करना है कि स्टूडियो में आप क्या आपको आउटडोर में क्या इफेक्ट चाहिए। एक लाइट पे भी काम हो जाएगा। अभी जैसे मेरे पीछे ये बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको अगर मैंने AD600 के साथ यूज किया तो मुझे एक सिंगल सॉफ्ट ब्राइट लाइट मिल जाती है। तो सनलाइट जो है वो मुझे फिल लाइट की तरह यूज कर सकता हूं मैं, और ये मेरी मेन लाइट हो सकती है। तो नॉर्मली एक मेन लाइट एक फिल लाइट होती ही है। तो ये मुझे कॉम्बिनेशन डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे सन को कैसे यूज करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे, अभी मैंने जैसे जो आपको मैंने मैनिक्विन का शॉट दिखाया उसमें क्या था, जो सनलाइट थी वो 4-5 बजे के करीब की सनलाइट थी, यानी वो कटलाइट की तौर आ रही थी। तो वो मैंने सनलाइट को कटलाइट बना दिया और मेरी फ्लैश को मैंने मेन लाइट बना दिया। जो स्काई की लाइट थी वो मेरी तीसरी लाइट थी, जो फिल लाइट थी। जो ओवरऑल जो बैकग्राउंड में आप सब चीजें देख रहे थे उसको लाइट जो कर रहा था वो स्काई कर रहा था, वो सन डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो इस तरीके से आपको लाइट का यूज करना आना पड़ेगा कभी भी, ये होता है। सर एक क्वेश्चन है, हाउ टू डिसाइड टाइप ऑफ लाइट टू बी यूज एज पर फेस स्ट्रक्चर? अभी ये चीज जो है, इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझने आनी चाहिए कि फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं है। यानी मैंने अगर इधर से मेरा फेस के यहाँ पे मैंने मिरर रखा तो मेरा राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे। आप इधर भी देख पाओगे कि मेरा इधर एक मार्क है, वो ये ऑपोजिट साइड पे नहीं है। तो ऐसे हर चीज में चेहरा 100% सिमेट्रिक नहीं होगा, कोई भी वो सिमेट्रिक नहीं होता है। तो इसलिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी साइड चेहरे की वो व्यक्ति की बराबर है। अब वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि बंदा हेयर कहां से पार्ट कर रहा है। लड़कियों में क्या होता है, बहुत बार सेंटर पार्टिंग होता है। तो सेंटर पार्टिंग में आपको दूसरे फीचर्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि नाक कैसे जा रही है, जॉ स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज एक देखनी है। दूसरी चीज आपको देखनी है, ये मैंने कहा सिर्फ अगर मैं स्ट्रेट देख रहा हूं, उसमें भी अगर मैं थोड़ा सा एंगुलर देखूंगा, जैसे ये है, ये मेरा 2/3 व्यू हुआ, तो 2/3 व्यू में चेहरा मेरा ये साइड का अलग दिखेगा और ये साइड का चेहरा वापस अलग दिखेगा। तो ये आपको ऐसा कोई भी रूल नहीं है, रूल ऑफ थंब के बाबा ये चेहरे को ये यूज कर सकते हो आप। आपको खुद को जज करना पड़ेगा कि ये चेहरे का राइट साइड ठीक लग रहा है, इसका लेफ्ट साइड ज्यादा अच्छा है। बट नॉर्मली जहां पे लोग पार्टिंग करते हैं बालों का, उनका उस साइड से आपको पता चलेगा कि ये साइड उनको ज्यादा पसंद है। हेलो। हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, हाँ, इज लो की लाइट एंड स्प्लिट इज द सेम लाइटिंग इफेक्ट? नहीं, लो की लाइटिंग अलग है। स्प्लिट जो है ये लाइट का पोजीशन है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि लाइट अगर एक साइड से आ रही है तो ये स्प्लिट लाइटिंग होगी, आधा चेहरा लाइट हो रहा है वो स्प्लिट होगा। बट लो की लाइटिंग जो है वो ओवरऑल पिक्चर डार्क हो जाता है। स्प्लिट लाइटिंग में सिर्फ आधा चेहरा लिट है, बट लो की लाइटिंग में ओवरऑल पिक्चर डार्क है। तो ये दोनों में काफी फर्क होता है। सर एक है, 5-6 क्वेश्चन ले लूं सर? हाँ हाँ, ले लीजिए। सर ये आपने जो रेड गाउन का जो पिक्चर निकाला था उसमें लाइटिंग कैसे किया था? ओके, वो रेड गाउन का जो पिक्चर था उसमें मैंने LC500 करके हमारी गोडॉक्स की एक लाइट स्टिक आती है, तो वो मैंने यूज की थी। मैं एक सेकंड मुझे दे दीजिए तो मैं आपको लाइट स्टिक दिखा देता हूँ। यस,
ये सब चीजें मैंने नजदीक में ही रखी हुई है, इसलिए आपको मैं फटाफट दिखा सकता हूँ। तो ये चीज जो है ये लाइट स्टिक है। अब ये लाइट स्टिक जो है ये रिचार्जेबल बैटरी वाली लाइट है, एलईडी लाइट से, और ये मैंने अगर ऑन किया तो मुझे इस तरीके से लाइट मिलती है। अभी जो सवाल था स्प्लिट लाइटिंग का, तो ये मेरे चेहरे पे स्प्लिट लाइटिंग हो गई, मेरा आधा चेहरा लिट है। ये चेहरा डार्क नहीं गया है, ये लो की पिक्चर नहीं है, बट लाइटिंग जो है ये स्प्लिट है क्योंकि मेरा आधा ही चेहरा लिट है। तो ये लाइटिंग जो है ये काफी ड्रामेटिक लाइटिंग है। यही अगर मैं पीछे से लेके जाता हूं तो मुझे कटलाइट का इफेक्ट मिलेगा। यही मैं इधर से दूंगा, यही मैं आगे से दे सकता हूं, तो आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट अलग अलग है। तो ये लाइट मैंने यूज की थी, सिर्फ एक ही लाइट यूज की थी और सिर्फ ये एक ही लाइट यूज की थी, तो उससे वो रेड गाउन वाला शॉट आ जाता है। सर इसमें और एक क्वेश्चन है, हाउ टू यूज कस्टम वाइट बैलेंस? हाँ, अब कस्टम वाइट बैलेंस हर कैमरा में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कैनन में अलग होगा, निकॉन में अलग होगा, सोनी में अलग होगा, बट बेसिकली प्रिंसिपल एक ही है कि जैसे मैंने आपको बताया, वो ग्रे कार्ड बताया था, ग्रे कार्ड को आपको शूट करना है और कैमरा के का एक सेटिंग होगा कस्टम वाइट बैलेंस का, उसमें जाके आपको ये वो पूछेगा कि कौन सा इमेज सिलेक्ट करना है। तो जो आपने लास्ट ग्रे कार्ड का इमेज शूट किया है उसको आपको वो इमेज देना है कि बताना है कि ये इमेज का वाइट बैलेंस मुझे चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करके दे देगा आपको। तो चलिए हम लोग प्रेजेंटेशन आगे लेके जाते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर स्क्रीन। ओके, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग लाइट क्यों यूज करते हैं, फ्लैश यूज करने का पर्पस क्या है। तो फ्लैश यूज करने का पर्पस ऐसा है कि हमें फ्लैश से एक ही प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, वो है लाइट का प्रॉब्लम। पिक्चर अंडर नहीं है, पिक्चर करेक्ट है, तो भी हम लोग बहुत बार फ्लैश यूज करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि पिक्चर को का लाइटिंग बदल सके। अपना गोल क्या होता है कि हम लोग एक सेपरेट एक्सटर्नल फ्लैश किस लिए यूज कर रहे हैं। हम लोग एक्सटर्नल फ्लैश इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग एक लाइट ऐड कर रहे हैं। अब वो लाइट जो है वो कैसे करेंगे ऐड, उसका सही प्रमाण होना जरूरी है, जिससे जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है एम्बिएंट लाइट से ज्यादा अच्छी लाइट दिखनी चाहिए, और जो एम्बिएंट या अवेलेबल लाइट है वो भी आपको कैप्चर करना है, तभी जाके वो पिक्चर अच्छा लगेगा। अगर आपने पिक्चर जो जैसे पहले लोग फोटोग्राफी करते थे 5.6 पे शूट करते थे और एक फ्लैट पिक्चर क्रिएट करके देते थे, वो फोटोग्राफी आज के तारीख में मार्केट में चलती नहीं है। तो लाइटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और पिक्चर इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको लाइटिंग अच्छी करनी जरूरी है और वो समझनी जरूरी है। तो हम आते हैं कि आपको लाइट की क्या जरूरत है, सॉल्यूशंस क्या है अपने पास। या तो हम लोग ऑन कैमरा फ्लैशेस यूज कर सकते हैं इस टाइप के, ये ऑफ कैमरा फ्लैशेस है, स्टूडियो लाइट्स है, और जो मैंने आपको दिखाया लाइट स्टिक LC500, इस टाइप की एलईडी लाइट्स भी है। तो अगर हम देखेंगे कि मार्केट में लाइट्स किस प्रकार की अवेलेबल है, आज की तारीख में अगर मुझे लाइट खरीदनी है तो मैं क्या देखूंगा कि दो टाइप की लाइट्स है। एक तो कंटिन्यूस लाइट होती है जिसमें हमारे डे लाइट आई, टंगस्टन लाइट आई जिसको हम लोग सनगन बोलते हैं, फोटो फ्लड्स बोलते हैं, HMI लाइट्स आती है, फ्लोरोसेंट लाइट्स आती है, एलईडीज आती है, और फ्लैश आती है। तो ये बेसिकली मार्केट में आज के तारीख में ये टाइप की लाइट्स अवेलेबल है।
ये क्यों आगे नहीं जा रहा है? ओके, तो एलईडी लाइट्स जो है वो अलग अलग टाइप की आती है। एक तो आपने ये देखी होगी, ये पैनल लाइट एलईडी आती है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब होते हैं और आपको जेल्स वगैरह किट्स मिलते हैं जिससे आप उसको ब्लू बना सकते हो, व्हाइट बना सकते हो, डिफ्यूज कर सकते हो। ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। फिर इस टाइप की लाइट स्टिक आती है। दूसरी आती है सिंगल चिप ऑन बोर्ड वाली लाइट्स, यानी अंदर एक ही चिप होगी जिसके वजह से आप उसके ऊपर सॉफ्ट बॉक्स वगैरह लाइट माउंट कर सकते हो। तो ये एक लाइट अवेलेबल है मार्केट में। अब नए टाइप की जो एलईडीज आ रही है, ये सब गोडॉक्स में अवेलेबल है बाय द वे, वो है मोबाइल फोन के साइज की लाइट्स, और ये काफी पावरफुल लाइट्स है। तो जैसे अभी मैंने अपने आप को, मैं जो शूट करने के लिए जो एलईडी यूज कर रहा हूं, उसके बजाय मैं ये भी छोटी वाली लाइट यूज कर सकता हूं, और काफी ब्राइट लाइट है ये। दूसरी है मैग्नेटिक राउंड वाले लाइट भी आई हुई है, जिसको जो V1 का जो AKR1 का किट आता है, ये लाइट का जो ये इसी साइज की लाइट है, बट ये एलईडी लाइट आई है। मैग्नेटिक है, छोटी है, मोबाइल फोन पे भी लग सकती है, ऐसे टाइप की भी लाइट मार्केट में आ गई है। तो ये सब लाइट्स मार्केट में आज की तारीख में आ रही है या आई हुई है। एक जो इंटरेस्टिंग लाइट आई है जिससे वेडिंग फोटोग्राफर्स को बहुत फर्क पड़ेगा, ये है FV150 लाइट। अब इससे वेडिंग फोटोग्राफर को क्या फर्क पड़ेगा ये मैं आपको समझाता हूं। जो फोटोग्राफर अब पोस्ट कोविड और पोस्ट लॉकडाउन शादियों में बजट कम होते जाएगा, और जब फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर दोनों का काम आपको अकेले को ही करना है या मैक्सिमम 2 लोग है, तो आपको ऐसी लाइट चाहिए जो दोनों काम कर पाए। ये लाइट है जो कंटिन्यूअस एलईडी लाइट के जैसे चलेगी, और जब आप फ्लैश आपको चाहिए तब आप शूट करोगे तो फ्लैश भी फायर हो जाती है। तो ये एक नई लाइट आई हुई है मार्केट में, गोडॉक्स ने ही बनाई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे टाइप की लाइट आई हुई है जो एलईडी भी है और फ्लैश का काम भी कर सकती है। तो वेडिंग में आप 2 लाइट्स लगा सकते हो, ये वीडियो भी शूट हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर सॉफ्ट बॉक्स भी लग सकता है, और फोटोग्राफर फोटोग्राफी भी करते जा सकता है, दोनों एक ही लाइट पे काम हो जाएगा। इसके अलावा जो फ्लैशेस आते हैं वो ऑन कैमरा फ्लैश आती है, ऑफ कैमरा फ्लैश आती है, और मोनोलाइट्स आती है। एंड अब इस टाइप के पावर पैक्स भी आ गए हैं मार्केट में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत फोटोग्राफर्स को कंफ्यूजन होता है कि फ्लैश की पावर क्या है। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाता हूं कि फ्लैश की पावर क्या होती है। मैन्युफैक्चरर जो है वो इनपुट वैल्यू बताता है, यानी 200 वॉट, 400 वॉट, 600 वॉट, 800 वॉट, 1000 वॉट, 1200 वॉट, ऐसी वो वैल्यू बताता है कि हमारी लाइट 200 वॉट की है या 400 वॉट की है। फोटोग्राफर को ये 200, 800, 600 से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, हम ऐसा सेटिंग तो नहीं करते कि ये 800 वॉट पे सेट किया तो मेरा एपर्चर 11 का आने वाला है। तो हमें चाहिए एपर्चर वैल्यू, तो वो एपर्चर वैल्यू हम लोग मीटर से ही निकालते हैं। तो फोटोग्राफर को का काम क्या होता है
आउटपुट। तो इसीलिए दो ब्रांड्स की अलग अलग ब्रांड होंगे, वैल्यूज के ऊपर 200 ही लिखी होगी, 200 वाट की, बट ब्रांड ए की 200 वाट की लाइट और ब्रांड बी की 200 वाट की लाइट सेम आउटपुट नहीं देगी, एक कम देगी एक ज्यादा देगी। तो इसलिए आपको इनपुट वैल्यू पे मत जाइए, आप आउटपुट पे जाइए। नॉर्मली जो ऑन कैमरा फ्लैशेस होती हैं उनका पावर रेंज जो है वॉट सेकंड के हिसाब से अगर मैंने देखा तो 65 से 85 वॉट सेकंड तक का ही पावर रहता है, और जो ऑफ कैमरा फ्लैशेस है उनका 150 से लेके 1000 वॉट सेकंड तक का पावर रहता है। मोनोब्लॉक्स जो है जो स्टूडियो में आप यूज करते हो उसका भी 150 से लेके 1200 वॉट्स तक का पावर रहता है। बट पावर पैक्स जो है उनका पावर 600 से लेके 4800 तक जाता है। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए होगी तो आपको पावर पैक की जरूरत पड़ती है, यानी आपको सन को ओवर पावर करना है तो आपको पावर ज्यादा चाहिए। मोनोब्लॉक भी काम कर सकता है, ऑफ कैमरा की भी पावरफुल फ्लैश होगी तो भी काम कर सकती है, बट अगर आपको तो भी लगता है कि कम है तो फिर आपको पावर पैक पे जाना पड़ेगा। तो जो स्पीड लाइट्स होती है जो हम लोग कैमरा के ऊपर ऑन कैमरा फ्लैशेस यूज करते हो इस टाइप के, ये इनका फायदा क्या है, ये पोर्टेबल है, मैनुअल होती है, उसमें 2 वर्जन आते हैं, मैनुअल भी आती है और टीटीएल भी आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है समझने के लिए कि टीटीएल क्या होता है, टीटीएल एक्सपोजर कैसे कैलकुलेट होता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट पे लाइट गिरी तो हम लोगों ने कैसे जज किया कि ये सब्जेक्ट का एक्सपोजर करेक्ट है। तो पहले हम लोग फ्लैश मीटर यूज करते थे, उस पे जो मीटर रीडिंग आता था वो हम लोग कैमरा में सेट करते थे। तो इधर 5.67 आ रहा है तो मैं 5.67 लगाता था। टीटीएल में क्या हो जाता है, टीटीएल में लाइट रिफ्लेक्ट होके कैमरा में जाती है, कैमरा का जो बिल्ट इन मीटर है वो मीटरिंग करता है। अब वो मीटरिंग जब करेगा तब उसको ये मालूम नहीं होता है कि सामने का सब्जेक्ट व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रे है। उसको एक ही बात बताइए कि जो सब्जेक्ट होगा वो मिड टोन ग्रे पे लेके आना है। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो सब इधर उधर घूम के मिड टोन ग्रे पे लेके आएगा। टीटीएल मीटरिंग कैसे काम करती है वो भी समझने की जरूरत है। जब आप शटर प्रेस करते हो आपको लगता है कि फ्लैश फायर हो गई, काम हो गया, एक ही काम हो गया, बट इन रियलिटी जब आप शटर प्रेस करते हो मिरर ऊपर चला जाता है और एक फ्लैश का प्री फ्लैश फायर होता है। ये प्री फ्लैश मेजर किया जाता है कि फ्लैश ने कितना आउटपुट दिया। उसके बाद एक्चुअल एक्सपोजर चालू होता है, शटर ओपन हो जाता है और एक्चुअल फ्लैश फायर होता है और शटर बंद हो जाता है और मिरर वापस नीचे आ जाता है। तो टीटीएल फ्लैश में पहले सब्जेक्ट फोकस होता है जब आप आधा शटर डिप्रेस करते हो। जब आप शटर फुल रिलीज करते हो या फुल दबाते हो तो एक्सपोजर भी कैलकुलेट किया जाता है। एक प्री फ्लैश फायर होता है, कैमरा और फ्लैश कम्युनिकेट करते हैं, फ्लैश एक्सपोजर कैलकुलेट करके एक्चुअल एक्सपोजर दिया जाता है। और ये सब बहुत फास्ट होता है, आपको 2 फ्लैशेस दिखते ही नहीं है, बहुत बार दिखते नहीं है। बट इसकी वजह से क्या होता है, स्टूडियो में अगर आपने ये बिल्ट इन पॉपअप फ्लैश यूज की ट्रिगर करने के लिए तो बहुत सारे ब्रांड्स की लाइट्स ऑटोमेटिकली फायर हो जाते हैं। फायर क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्री फ्लैश में ही फायर हो जाते हैं और आपका जब एक्चुअल एक्सपोजर होता है तो वो सिंक नहीं हो रहा है। तो इसलिए गोडॉक्स में S1 और S2 का स्लेव फंक्शन दिया गया है। अगर S1 आपने यूज किया तो वो नॉर्मल फ्लैश की तरफ फायर करेगा और S2 अगर आपने यूज किया
तो वो प्री फ्लैश को इग्नोर करेगा और सेकंड जो मेन फ्लैश है उसी के टाइम पे फायर करेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन दिया है सब गोडॉक्स के लाइट्स में। तो यहां पे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट ग्रे है तो भी ग्रे आएगा, ब्लैक होगा तो भी वो ग्रे करेगा, व्हाइट होगा तो भी ग्रे करेगा। तो टीटीएल मीटरिंग 100% एक्यूरेट नहीं है, काफी एक्यूरेट है, बट ओवरऑल वो एक्सपोजर बहुत बार गलत देगी। आपको अगर टेस्ट करना है तो कुछ मत कीजिए, एक कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसको शूट कीजिए फ्लैश के साथ या मीटर के साथ जो टीटीएल मीटरिंग है, और देखिए क्या रिजल्ट आता है। आपको ब्लैक नहीं आएगा, आपको डार्क ग्रे ही आएगा। प्योर व्हाइट को आप शूट करने के लिए जाओगे तो भी सेम चीज होगा, वो ग्रेइश आएगा, व्हाइट नहीं आएगा। तो आपको एक्सपोजर कॉम्पनसेशन देने की जरूरत पड़ती है। अब जितने मैन्युफैक्चरर्स है वो सब लोग अपनी अपनी टीटीएल फ्लैशेस बनाती है और अलग अलग प्राइसेस के रेंज में ये अवेलेबल है। गोडॉक्स की जो ओपनिंग रेंज है, जो सबसे सस्ती है, वो 6,000 रुपए से चालू होती है और इसमें सब फंक्शंस है। ये 2 पेंसिल सेल पे चलने वाली फ्लैश है। उसके बाद आती है 585 जो वापस ITTL मोड पे है, ITTL ETTL सब है और 4 बैटरीज लेती है। अब आप देखेंगे कि गाइड नंबर नहीं बदल रहा है, बट सिर्फ प्राइस रेंज चेंज हो रही है। ये TT600 जो है ये मैनुअल फ्लैश है, इसमें TTL वगैरह का फंक्शन नहीं है, इसलिए ये सबसे सस्ती है प्राइस रेंज में। T685 860 के जैसे ही फ्लैश है, बट इसमें रेगुलर बैटरी चलती है और 865 जो है 860 जो है उसमें लिथियम आयन बैटरी बिल्ट इन है, यानी आपको उसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी मिलती है। ये सब MRP प्राइसेस है। तो ये आप एक पूरा कंपैरेटिव स्टडी देख सकते हो सब फ्लैशेस का। अभी जो एक्सेसरीज आते हैं वो ये है AKR1 किट, जो बेसिकली सब राउंडेड फ्लैशेस पे मैग्नेटिकली चिपकेगा। बहुत लोग आजकल मैगमॉड वगैरह के एक्सेसरीज यूज करते हैं। मैगमॉड के एक्सेसरीज में एक इशू रहता है, उसकी प्राइस। मैगमॉड की जो प्राइस है उसके सब एक्सेसरीज का एक एक्सेसरी के प्राइस में इसका ये पूरा किट आ जाता है। ऑफ कैमरा फ्लैशेस में बहुत से मैन्युफैक्चरर्स है जो बहुत सारी लाइट्स बनाती है। गोडॉक्स में इसकी सबसे ज्यादा रेंज है, AD200 है, 300 है, 400 है, 600 है। AD300 Pro जो है ये लेटेस्ट वर्जन है और आप साइज देख सकते हो कितनी छोटी है। AD400 Pro काफी बड़ी है, बट 300 बहुत छोटी है साइज में। तो बेसिकली AD200 और AD200 Pro के प्राइसेस में भी मैंने दिए हुए हैं, ये MRP प्राइसेस है और ये सारे फंक्शंस उसमें अवेलेबल है। AD300 ऑफिशियली इधर लॉन्च नहीं हुई, इसलिए मैंने उसके कोई डिटेल्स आपको नहीं दिए हैं। अब हम आते हैं मोनोब्लॉक लाइट्स जो हम लोग स्टूडियो में यूज करते हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ये भी बनाते हैं, बट एक जो
अच्छा और रीजनेबली प्राइस्ड किट है वो है SK400 का किट। रास्ता आगे चला गया। ये SK400 का किट है जिसकी पावर भी काफी अच्छी है और 5 स्टॉप्स का कंट्रोल रेंज है और प्राइस तो आपको मालूम ही है, ये पूरा किट है, ये प्राइस में आपको आ जाती है। तो अगर स्टूडियो सेटअप करना है तो ये लाइट्स स्टार्टिंग के लिए ये बहुत अच्छी है। दूसरा जो नया लाइट आ रहा है वो है ये AD1200 पावर पैक। ये गोडॉक्स का नया लाइट है जो आप लोकेशन पे भी लेके जा सकते हो। ये बैटरी ऑपरेटेड पावर पैक है और बैटरी ऑपरेटेड में ये सबसे पावरफुल लाइट होगी गोडॉक्स की। मोनोलाइट्स में गोडॉक्स के बहुत सारे मॉडल्स है। टॉप ऑफ द रेंज जो है वो है QT सीरीज, जिसमें AD600 के जितने फंक्शंस है वो सब फंक्शंस उसमें अवेलेबल है और बहुत ही हाईटेक लाइट है। एक्सेसरीज तो आपको मालूम ही है, सब ये सारी चीजें अवेलेबल है। सॉफ्ट बॉक्सेस की प्राइस रेंज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं और साइज का कंपैरिजन बता रहा हूं। ये कोई भी कॉम्पिटिटर के प्राइस सॉफ्ट बॉक्सेस के प्राइस इसके रेंज में आएगा नहीं। ये प्राइस में तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अब हम आते हैं जो ट्रांसमीटर है उसका क्या फंक्शन है। सब जो ट्रांसमीटर्स है गोडॉक्स के वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलते हैं क्योंकि वो वायरलेस फ्रीक्वेंसी है। और X1 और X Pro ट्रिगर जो है ये सब लाइट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। अब X1 में अगर मैंने आपको बताया तो ग्रुप्स है ABC, आप सेट कर सकते हो, मैनुअल सेट कर सकते हो या TTL सेट कर सकते हो, चैनल्स भी सेट कर सकते हो। ये सब ऑप्शंस आपके पास उसमें होते हैं। चैनल का बटन दबाओगे तो चैनल ब्लिंक करेगा, आप चेंज कर सकते हो। ग्रुप का बटन दबाओगे तो ग्रुप ब्लिंक करना चालू करेगा और आप वो चेंज कर सकते हो। मोड में जाके आप सेट कर सकते हो कि आपको मैनुअल मोड चाहिए या TTL मोड चाहिए या कुछ भी, ये सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि चैनल क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। एक रूम के अंदर एक ही शादी में या एक ही इवेंट के लिए 2 फोटोग्राफर्स है तो वो अलग अलग चैनल पे काम कर सकते हैं गोडॉक्स की लाइट्स ही यूज अगर कर रहे हैं तो एक 15 पे एक 9 पे है तो उनकी वो अपनी अपनी सेटिंग्स करके एक की लाइट दूसरे को ट्रिगर नहीं करेगी। तो ये एक ऑप्शन होता है। गोडॉक्स में 32 चैनल्स होते हैं, 0 से 32 तक आप सेट कर सकते हो। ग्रुप्स क्या है? ग्रुप्स चैनल्स के अंदर इंडिविजुअल ग्रुप्स हो जाते हैं। यानी मैं ग्रुप A में जो लाइट्स डाल सकता हूँ वो मेन बन सकती है, B मेरा फिल हो सकता है और ग्रुप C की जो लाइट्स है वो कट लाइट या इफेक्ट लाइट हो सकती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात होता है वो होता है कि लाइट का रेशियो कितना है। लाइट रेशियो यानी आप कैसे डिसाइड करोगे कि लाइट कितने प्रोपोर्शन में है। तो ये चीज करने के लिए आपको मीटर यूज करना जरूरी है। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला ऐसा होता है कि जो आपका एक्सपोजर है उसका लोएस्ट वैल्यू जो है वो 1 पे रखना होता है, तो 1:2 आपको रेशियो मिलेगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक यूनिट जो है ये 2.8 का है, उसका डबल F4 हुआ, 4 का 5.6 हुआ, यानी रेशियो 1:4 हुआ। तो A:B का जो रेशियो होता है वो डबल हो जाता है। एक स्टॉप यानी लाइट का पावर डबल हो गया।
तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मैनिक्विन पे सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि अलग अलग रेशियोज में कितना फर्क पड़ता है। ये 4 बेसिक लाइट के पैरामीटर, लाइट के पोजीशंस है। तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं लाइट का रेशियो बढ़ाते जा रहा हूं तो शैडो बढ़ती जा रही है। ये कॉन्ट्रास्ट जो है ये मैं लाइट मीटर के अलावा कैसे भी मेजर नहीं कर सकता हूं। नॉर्मली लाइट में अगर एक स्टॉप का डिफरेंस है तो 2:1 रेशियो है, 1.5 स्टॉप का डिफरेंस होता है तो हम लोग 3:1 रेशियो बोलते हैं, 2 स्टॉप का डिफरेंस अगर होगा तो 4:1 रेशियो होता है। अब अगर आप सन के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, यानी आउटडोर में गए और आपको डे लाइट के साथ आपका लाइट रीडिंग आप ले रहे हो, तो आपको वो डिसाइड करना है कि सन का लाइट कितना रखना है। तो अगर आपने एक स्टॉप का डिफरेंस रखा बिटवीन डे लाइट एंड फ्लैश तो आपका रेशियो 1:2 है। अगर आपने 1.5 स्टॉप का डिफरेंस रखा, यानी आपकी फ्लैश सन से 1.5 स्टॉप ज्यादा ब्राइट है, तो 3:1 का रेशियो हो जाता है। तो ये इस प्रकार आपको लाइट का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसीलिए जब आप आउटडोर में जाते हो और सन के साथ या ऐसा जो इफेक्ट आपको चाहिए वो नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो लाइट का रेशियो है वो आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आया है। अब जो गोडॉक्स की फ्लैशेस है उसमें बेसिकली ये टाइप के सिंबल्स दिए गए हैं। ETTL के सिंबल्स है, वायरलेस का सिंबल होता है, स्लेव्स का सिंबल है, ग्रुप्स, चैनल्स, ये सब सिंबल्स उसके ऊपर दिए गए हैं और लिखा हुआ आता है कि मास्टर है या स्लेव है। जब मास्टर होता है तो ये ग्रीन लाइट रहेगी। जब आप ऑन कैमरा यूज करोगे तो आपको ETTL मीटरिंग मिलता है। ऑन कैमरा ट्रिगर के तौर पे अगर यूज करोगे तो आप थर्ड पार्टी के फ्लैशेस यूज कर सकते हो, यानी कैनन के अगर आपके पास ओरिजिनल फ्लैशेस है और आप कैनन सिस्टम यूज कर रहे हो तो वो फायर कर सकती है, या निकॉन का होगा तो निकॉन की सिस्टम आप यूज कर सकते हो। निकॉन के माउंट से ये ट्रिगर करेगा, बट ये ऑप्टिकली ट्रिगर कर रहा है। इसलिए मैंने आपको आंख का निशान उधर दिखाया रहा हूं कि ये ऑप्टिकल ट्रिगरिंग हो रहा है, इसको लाइन ऑफ साइट की जरूरत होती है, ये वायरलेस ट्रिगरिंग नहीं है। तो अगर आप AD 600 यूज कर आप 600 RT कैनन की फ्लैश यूज कर रहे हो तो वो इसके साथ ट्रिगर नहीं होगी, वायरलेस ट्रिगरिंग नहीं होगा उसका ऑप्टिकल ट्रिगरिंग भी हो सकता है। ये जब कैमरा स्लेव मोड में चला जाता है तब आप देखेंगे कि उसका डिस्प्ले जो है वो रेड या ऑरेंज चला हो जाता है। यहां पे मैं जो बिल्ट इन पॉपअप फ्लैश है उससे ये फ्लैश को फायर कर सकता हूं ऑप्टिकली। और अगर मैंने वायरलेस मोड में डाला तो ये वायरलेस मास्टर से मेरी फ्लैश मास्टर बन सकती है और बाकी के सब फ्लैशेस को फायर कर सकती है। ये वापस स्लेव मोड में कलर चेंज हो जाता है, बट वहां पे आप देखेंगे कि ETTL के साथ एक वो वायरलेस वाली डंडी आ गई है। तो इससे मैं ये मोड अगर नहीं आया तो ये फ्लैश ट्रिगर नहीं होगी वायरलेसली। ऑफ कैमरा यूज करने के लिए वो तरीका है। ये AD200 और AD200 का डिस्प्ले जो है वो भी सिमिलर है। यहाँ पे मोड आएगा, चैनल्स आएंगे, वायरलेस का सेटिंग आएगा, ग्रुप आएगा, T01 यानी ये फ्लैश ड्यूरेशन का टाइम आएगा, मॉडलिंग लैंप्स, ये सब सेटिंग्स इसमें आ जाते हैं और कस्टम फंक्शंस भी है, ग्रुप चैनल्स भी है। तो ये जो फ्लैश ड्यूरेशन है ये बेसिकली बताता है कि फ्लैश कितना इंटेंसिटी से फायर हो रहा है और कितने टाइम तक फायर हो रहा है। नॉर्मली अब तक जो मैन्युफैक्चरर्स फ्लैश का ड्यूरेशन बताते थे वो T05 बताते थे, जो ओनली 50% लाइट है।
और उसी के बारे में सब बात करते हैं। T01 जो है वो एक्चुअल टाइम होता है, T05 में 40% लाइट अकाउंटेड नहीं है। तो T01 इज द एक्चुअल फ्लैश ड्यूरेशन। तो अगर आपको कोई जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो मैं अभी थोड़े टाइम में आपको दिखाऊंगा उस टाइप की प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है तो आपको T01 यूज करना पड़ता है। अब टाइम तो आपको सबको मालूम है, 1 सेकंड क्या है, 1/8 ऑफ अ सेकंड क्या है, 1/125 ऑफ अ सेकंड अपने को सबको मालूम है। और फ्लैश ड्यूरेशन जो है वो उससे बहुत ही कम होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये 1/128 का फ्लैश ड्यूरेशन है। और अगर मैंने ये फुल पावर पे है, जैसे मैं उसका पावर डाउन करता हूं 1/16 करता हूं तो फ्लैश ड्यूरेशन आप देखेंगे कि कम होके 1/3000 ऑफ अ सेकंड तक पहुंच गया। तो जैसे जैसे मैं पावर डाउन करूंगा फ्लैश ड्यूरेशन घटता चला जाएगा। और अगर फ्लैश ड्यूरेशन मैंने घटाया तो मैं इस तरीके की फोटोग्राफी कर सकता हूं। तो ये सब जो फोटोज है ये सिर्फ फ्लैश ड्यूरेशन पे है, ये शटर स्पीड पे नहीं है। दूसरी चीज, कैमरा में फ्लैश फायरिंग एनेबल करना होता है। और यहां पे आप देखेंगे कि ये कैनन कैमरास का सेटिंग मैं दिखा रहा हूं, उसमें फर्स्ट कर्टन सिंक आएगा, उसके बाद एक सिंबल है वो है सेकंड कर्टन सिंक, और तीसरा है H यानी हाई स्पीड सिंक। तो ये तीनों हम सेटिंग समझ में लेते हैं। फर्स्ट कर्टन सिंक में क्या होता है, सेकंड कर्टन सिंक में क्या होता है, और हाई स्पीड सिंक में क्या होता है। फर्स्ट कर्टन सिंक में जब आप शटर क्लिक करते हो तो फ्लैश फायर हो जाती है और फिर शटर बंद हो जाता है, नॉर्मल है। रेयर कर्टन सिंक आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका फ्लैश ड्यूरेशन, आपका एक्सपोजर टाइम लंबा है। यहां पे आप देखेंगे कि 1 सेकंड का एक्सपोजर है या आधे सेकंड का एक्सपोजर है। तो कब फायर होगा, फ्लैश फायर नहीं हुई। फ्लैश तब फायर होगी जब शटर बंद होने वाला है। ये कब काम का है, जब हम लोग आउटडोर में शूट कर रहे हो, रात के टाइम पे शूट कर रहे हैं, बैकग्राउंड को आपको रिकॉर्ड करना है तो आप इस टाइप का मोड यूज कर सकते हो। यहां पे बैकग्राउंड रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद ही फ्लैश फायर होगा, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, फ्लैश फायर हो गई लोग हिलने चालू हो जाएंगे और आपका एक्सपोजर खराब हो जाएगा। तो इसलिए रेयर कर्टन सिंक लेके अगर आपने आउटडोर शूट किया तो आपको, खास करके अगर आपकी शटर स्पीड स्लो है तो आप रेयर कर्टन सिंक यूज कर सकते हो। हाई स्पीड सिंक जो है ये एक टोटली अलग गेम है। हाई स्पीड सिंक में क्या होता है कि फ्लैश जो है ये एक बर्स्ट देने के बजाय लो पावर पे बहुत सारे फ्लैशेस फायर करता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो वो जो बैंड आता था वो बैंड नहीं आएगा, क्योंकि ये 1/2000 ऑफ अ सेकंड में एक के बाद एक फ्लैशेस फायर हुए, तो वो बैंड आने से पहले वो 1/2000 ऑफ अ सेकंड तक ऑलमोस्ट एक फ्लैश लगता है। इसलिए अपने आंखों को वो देखते समय भी एक ही फ्लैश दिखेगा। आप HSS फ्लैश आपको कभी भी दिखेगी नहीं इस तरीके से फ्लैश मल्टीपली हो गई है करके, बट इन रियलिटी उसकी पावर डाउन हो जाती है और बहुत सारे लो पावर के फ्लैशेस फायर होती है। ये वापस ये दोबारा आ गया, सेकेंड, ओके। तो अगर आपने फ्लैश यूज किया है, ऑन कैमरा के ऊपर आपकी फ्लैश है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आपको 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट ऑन कैमरा फ्लैश यूज करो, जो मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट रिजल्ट देती है। आप उसको डिफ्यूज कीजिए, वो एक पंजे के जैसा
डिफ्यूजर आता है, वो यूज कर सकते हो आप। बाउंस कर सकते हो दीवार से या कोई भी डिफ्यूजर से। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब याद रखिए कि डायरेक्ट फ्लैश अगर यूज करते हो तो एक हार्ड शैडो आ जाता है सब्जेक्ट के पीछे। यही चीज अगर मैंने बाउंस की, ये जो इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट होता है जो कॉम्पैक्ट फ्लैश में रिजल्ट देता है, वो सेम होता है। इसलिए ये बहुत सारी शादियों में क्या होता है कि हम लोग शूटिंग करने के लिए जाते हैं और वहां पे कोई रिश्तेदार होता है जिसके हाथ में भी डीएसएलआर होता है, बट 9 आउट ऑफ 10 टाइम वो डीएसएलआर के ऊपर पॉपअप फ्लैश के वो शूट कर रहा होता है। अगर आपने भी ऑन कैमरा फ्लैश यूज की और उसी स्टाइल में यूज की तो आपका रिजल्ट और उसके रिजल्ट में कुछ ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, सिर्फ कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फर्क होगा। अपने पास जो ऑप्शन होते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है बाउंस करने का। तो अगर दीवार हो या सीलिंग हो उससे आप लाइट बाउंस कर सकते हो। और बाउंस करते समय आपको एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होती है कि ये कैरम के जैसा होता है। आपको लाइट किधर हिट होके सब्जेक्ट पे आ रही है या नहीं, इसका ध्यान देना होता है। बहुत से फोटोग्राफर सीधा 180 डिग्री से सीलिंग पे ऊपर बाउंस करते हैं। वो ऊपर सीधी चली जाती है लाइट और नीचे आ जाती है, वो उन्हीं के ऊपर आती है, सब्जेक्ट के ऊपर जाती नहीं है। सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कम लाइट जाती है, तो वो आपको एंगल करके यूज करना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट पे लाइट बराबर आई है तो एक्सपोजर सही आ जाएगा। ये भी ध्यान देना पड़ता है कि सब्जेक्ट पे बहुत बार दीवारें व्हाइट नहीं होंगी या पर्दे कलर्ड होंगे, आप लाइट बाउंस कर रहे हो, वो कलर कास्ट पिकअप करेगा। तो इसलिए मैं जो प्रिफर करता हूं वो है एक सिंपल सिल्वर अम्ब्रेला या व्हाइट अम्ब्रेला, या एक रिफ्लेक्टर लेके आप जा सकते हो, बट रिफ्लेक्टर लेके जाना इनकन्वीनियंट होता है, अम्ब्रेला ज्यादा कन्वीनियंट होती है। तो अब हम आते हैं कुछ प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स है जो अभी मार्केट में जिस टाइप की फोटोग्राफी आपको मिलने के चांसेस हाई है। एक होती है ज्वेलरी की फोटोग्राफी, दूसरी है फूड की फोटोग्राफी। ये पोस्ट कोविड ये सब चीजें आपको इस टाइप की फोटोग्राफी के ऑप्शंस आने के चांसेस बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि अब सब जो छोटे छोटे दुकानदार है उनको अपने अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना होगा, उनको भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं और फोटोग्राफर्स को ये शूट करना आना जरूरी है। तो ये जैसे आपको मैंने बताया कि ये HSS पे है, हाई स्पीड सिंक पे है। ये टाइप के प्रोडक्ट्स की शूट हो सकती है। खाने के प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन है, मिठाई वाला होगा, कोई बेकरी वाला होगा, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। आप जो जितने इंटरेस्टिंग शूट करके दोगे उतना ही आपके पास क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे। सिंपल सी चीज है, सब्जियां भी आप इंटरेस्टिंग स्टाइल में फोटोग्राफ कर सकते हो, क्योंकि अब सब ऑनलाइन चालू हो जाएगा, लोग ऑनलाइन देख के ऑर्डर करेंगे, तो आपको सब्जियां भी ऑनलाइन आएगी। ये सब चीजें आपको फोटोग्राफ करना जरूरी है, आना जरूरी है, तो ये सीखना पड़ेगा आपको। यहां पे मैं आपको एक सिंपल सा चीज दिखाता हूं कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीटचिंग। ये शॉट में आपको दिखेगा कि ये मैंने एक बेसिक शॉट निकाला हुआ है, बट रीटचिंग कैसे की गई है ये देखिए। मैं हर स्टेज का आपको रीटचिंग का शॉट दिखा रहा हूं। ये एक था, यहां पे आप देखेंगे कि मैंने पिक्चर को ब्राइटन किया है, कुछ एरियाज ब्राइटन हुए हैं। अब उसमें आप देखेंगे कि वो डायमेंशंस आने चालू हो गए।
जो पीछे का साइड था वो शार्पन हो गया, जो बराबर एक्सपोज नहीं था उसको भी मैंने बराबर कर दिया। तो ओवरऑल फाइनल शॉट जो है वो इस टाइप का दिखेगा, जिसमें मैंने रिफ्लेक्शंस भी नीचे थोड़े दिए हैं। ऐसे करके वो शॉट आपको है, बहुत ही सिंपल सी चीज, बट इसके पीछे जो रीटचिंग है ये बहुत एग्जॉस्टिव होता है। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप क्लाइंट को कोट कर रहे हो तो ये भी सोच लीजिए कि इसको रीटच कितना करना पड़ेगा, और रीटचिंग में कॉस्ट कितना जाएगा, टाइम कितना जाएगा। ये इसमें ऑलमोस्ट ये शॉट में थोड़ा रीटचिंग है, इसमें भी मामूली रीटचिंग है। मामूली यानी सिर्फ जो बैकग्राउंड में आप लाइट दिख रहे हो वो मैंने दूसरे शॉट से डाल दिए, उसमें फोटोशॉप का दूसरा कुछ काम नहीं है। प्रोडक्ट का शॉट और वो जो स्प्लैश है वो एक्चुअल स्प्लैश है। इस शॉट में तो बिल्कुल भी रीटचिंग नहीं है, ये एक्चुअल स्प्लैश वैसे का वैसा ही शूट किया गया है। ये शॉट में भी फोटोशॉप का कोई काम नहीं है, सिर्फ क्लीनअप के जो रीटचिंग होता है वही किया गया है। ये एग्जैक्ट एज शॉट है। Well, Dhananjay ji, thank you very much for your very good tips about the lighting source, और वो भी particularly artificial, how it is to be used in portraiture photography as well as product photography also. आपका बहुत ही बढ़िया रहा और हमारे सभी मेंबर आपसे बहुत खुश है। I thank you very much for sparing your valuable time and educated to all our live members. We are happy to present a certificate on behalf of MPA which reads out like this. Certificate of Appreciation, Mumbai Photographer Association, established in 1997. This certificate is presented to Mr. Dhananjay More for conducting a webinar session on concept lighting in lockdown period.